In the last class, we have just discussed some problem related to mixed combination of capacitor, and that question was given here. So, looking at the same question and go on to the solution, we will get the result. And after simplifying the circuit, your new circuit will be this. C23 is the equivalent capacitance of capacitor C1 and C2. Now, this equivalent capacitance uh, in place of C1 and C2 and C2 and C3 and C1 will be in series. So after that, we will apply the series formula for equivalent capacitance. And you know that in series, uh, equivalent capacitance is expressed as 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1 plus 1 upon C23. And putting the value, you will get the result. So, and this is the capacitor in series and parallel. So capacitors connected in this figure you see here. So if you connect with the terminal of the battery, you will see that charge gets divided over the two capacitors. This indicates that the two capacitors are parallel, because voltage or potential difference across each remains same. Okay. So you will apply the concept of parallel combination. You will see here that in parallel combination, equivalent capacitance is equal to C1 plus C2. So here, try to understand what is the requirement of the questions. Source voltage is 24 volt, and after they are charged fully, they are disconnected. After being full charged, the battery is removed from the circuit, and from each other, disconnected from each other, from the source and from each other, then reconnected directly to each other. So try to understand. First of all, with this combination, both the capacitors connected fully and charged fully, and after that, disconnected from the battery and even from each other, and after that, reconnected directly to each other without any battery. So with the plate of opposite side connected together and positive sign. So with the plate of opposite side connected together, it means they are connected in series. So with the plate of opposite sign connected together, and find the charge on each capacitor and potential across each capacitor after final connection when equilibrium is established. So this is the questions. First aspect of the question is here. This battery charged the two capacitors. When the two capacitor is fully charged, this battery is removed, and even capacitor C1 and C2 is disconnected from one another. After disconnection, they are again reconnected, and the result is this. A reconnection circuit is this one. In this connection, no battery is there. So at the instant of reconnection, one will, so some amount of charge on this plate and some amount of charge on this capacitors, and these capacitors will be there. A short time later, after certain time interval, your solution is this. When connected to voltage source, the charge given is equal to CV, Q equal to CV. So Q1 equal to C1V, Q2 equal to C2V, because parallel में connected है, the potential across them will remain same. इसलिए charge over first capacitor with capacitance C1 is given as C1V,
and charge over second will be given as this. So total charge will be given as sum of the two charges. So after disconnection and reconnecting, जब disconnect कर दिया जाता है, then voltage across each capacitor will remain same. क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे ही वोल्टेज सेम रहेगा तो क्या चीज डिफर हो सकता है? चार्ज डिफरेंट होगा। तो चार्ज अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट पर चार्ज रहेगा Q1 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम Q एंड सेकंड पर रहेगा Q2 स्मॉल Q1 Q2 such that sum of Q1 and Q2 just equal to difference of Q1 and Q2। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो दिस इज अ न्यू टॉपिक नाउ वी हैव टू डिस्कस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन a capacitor। ये one of the important topic that we have to understand। A charge capacitor stores electrical energy within the space of the two conducting plates। So energy stored in is just equal to the work done to charge the capacitor। Suppose in case of parallel plate capacitor, initially charge over the plate is Q। Now if you want to add extra charge dQ over it, you know that already charge there on plate will repel the additional charge to be added on it. So you have to do external work against that repulsion. And this amount of work done is stored as electrical energy in the capacitor. So the work needed to transfer additional amount of charge dQ is just equal to potential at that time into additional charge to be added। Say dW upon dQ equal to V at an instant of time t, therefore dW equal to V into dQ। Now from concept of capacitors, C equal to V upon Q upon V, therefore V equal to Q upon C। So you just place a V equal to Q upon C, so your result is Q upon C into D। Now we have to integrate in order to get total amount of charge to be stored on the capacitor। So say initial charge stored was 0 and after full charging its charge is Q। So after integration Q, capital C is constant because it is capacitance, so taking outside the integral sign and just you have to integrate Q dQ, so it will be Q square upon 2, and here C is outside the integral, so Q square upon 2C। After integration you will find the result, you have to follow the proper steps for integrating and you will come to this। So this is the energy stored in a capacitor by charging a capacitor giving up to a charge Q। So we see here energy stored in a capacitor is directly proportional to a square of charge given to the capacitor and inversely proportional to capacitance of capacitors। So this work is stored as electrical potential energy, and this is called energy, electrical energy stored in capacitors। After that, from the same formula Q square upon 2C, you can replace this formula because you know that C equal to Q by V. So if you replace C by Q by V, you will get this result, half into P to V. This is also equivalent to this because from same formula you get this। Next, now eliminating Q in this question, in this expression, capacitance is eliminated and potential getting got. In this, charge is eliminated, that is Q. So Q equal to CV,
So you can place, in place of Q, you place CV. So C square V square upon C. So C will get cancelled out. So half CV square. So we have three formula for electrical energy. Half into Q square by C, half into QV, and half CV square. And all the three formulas are equal. So in accordance with the situation, you can apply any of the three formula in order to calculate electrical equation for electrical energy. Next, electric energy storage. कैमरा में क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस जरा समझिए कि कैमरा फ्लैश यूनिट स्टोर्स एनर्जी इन ए 150 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर एट 200. जो कैमरा आप यूज करते हैं वो जो फ्लैश देता है, तो वो फ्लैश के लिए पहले से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है उस कैमरा में. 150 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर लगा होता है और वो 200 वोल्ट पर ऑपरेट होता है. तो क्वेश्चन है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड. पहला क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो, बिकॉज हमें कैपेसिटेंस मालूम है, वोल्टेज मालूम, पोटेंशियल. दैट इज, so energy stored is just equal to half CV square. C is known, V is known, so energy equal to half CV square. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है how much electrical energy can be stored. How much electrical energy can be stored. दूसरा, what is the power output if nearly all this energy is released in 1 millisecond. So millisecond means 10 to the power minus 3 seconds. So energy we have already calculated, half CV square. Now energy when divided by time, this gives you power. So just divide the energy obtained in question 1 by time t to the power minus 3 seconds, you will get the result. Look at here. Energy obtained was 3 joule, and 3 joule when divided by this, you get 3000 watt. So it means a power associated with that camera will be 3000 watt. Now electric energy storage. A parallel plate capacitor carries a charge Q and is then disconnected. पहले तो उस पर चार्ज इतना रखता है, disconnected from a battery. Now the two plates are initially separated by a distance d. Initially separation between the two plates of parallel plate capacitor was d. Now suppose the plates are pulled apart. अब इस d को भी बढ़ाना है by pulling the two plates apart until the separation becomes twice. Then question is that how has the energy stored in this capacitor changed? अब सवाल है कि जब हम उसको चार्ज कर दिए बैटरी से तो उस पर चार्ज है Q. अब अगर हम कैपेसिटर की सेपरेशन को बढ़ाते भी हैं तो चार्ज थोड़ी घटेगा बढ़ेगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा. तो फिर अब क्या चीज घटेगा बढ़ेगा? सेपरेशन जब बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस घटेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. अगर A और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो D बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस बिकम्स जस्ट हाफ, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया तो हाफ हो जाएगा कैपेसिटेंस. अब जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. नाउ यू हैव न्यू कैपेसिटेंस C प्राइम which is half of initial capacitance C. तो इनिशियल एनर्जी था हाफ Q स्क्वायर बाई C. अब फाइनल एनर्जी हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C प्राइम. चूंकि C प्राइम हाफ हो गया है ऑफ C, तो अब एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? डबल होगा या उतना ही रहेगा? यही आपको समझना. तो सो सिंपल. Initial charge over the capacitor was Q. Initial separation was D. So capacitance initial was C equal to epsilon naught
A by D. So energy stored in the capacitor after just charging is half Q square by C. Say this is equation 1. Now plate is separated to double distance, that is twice of D. Then capacitance becomes half C equal to C prime equal to epsilon naught A by 2D. This is equal to C by 2. So energy in this case will be Q square by half into Q square by 2, half into Q square by C prime. And C prime is half of C. So just you click. So just it becomes Q square by C. Factor 2 will be cancelled out. So in this case, energy becomes double to that of initial case. तो सवाल है कि एनर्जी आया कहाँ से, जबकि चार्ज उस पर उतना ही है, बैटरी से जो कनेक्ट किए थे तो जितना चार्ज है उतना ही है, तो आया कहाँ से? तो ये एडिशनल एनर्जी जो आया है, वर्क डन बाय पुलिंग एक्सटर्नल एफर्ट के द्वारा जो वर्क डन हुआ टू पुल द प्लेट्स, क्योंकि एक दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर होना चाहेगा नहीं, बिकॉज वन कैरी अपोजिट चार्ज इन कंपैरिजन टू अदर, तो अट्रैक्ट करेगा, तो उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट यू हैव टू पुल an amount of work done against that pull will be stored as potential energy. So this additional potential energy is there. So now in this case energy will be double. So you see here initial energy is this one, initial capacitance is this one. As D becomes double D, then capacitance changes to C prime and equal to. Okay. उसके बाद next electric energy storage. So you have understood it well. Now next is electric energy storage. This is also a question. The plates of parallel plate capacitor have area A separated by a distance x and are connected to a battery without voltage. This is the data. While connected to the battery, the plates are pulled apart until their separation becomes thrice. Again, same question that I have discussed there. In that case, the distance was doubled, here thrice. So what are the initial and final energy stored in the कैपेसिटर? दैट मीन्स इनिशियल को U कहेंगे, फाइनल को U प्राइम कहेंगे। इनिशियल के केस में वोल्टेज V है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D, दैट इज X, सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन X है, सो यू कैन से C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by X। और इसके बाद जब उसको 3 टाइम्स सेपरेट कर देते हैं तब उसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by 3x। इसका मतलब C प्राइम बिकम्स 1/3 ऑफ C। इसलिए व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन? तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और C की जगह पर आप डाल देंगे A एप्सिलॉन नॉट A by x, और नेक्स्ट हो जाता है हाफ C प्राइम V स्क्वायर। V तो वही रहेगा, पोटेंशियल वही रहेगा, सेपरेशन अगर चेंज कर देते हैं, और पोटेंशियल विल चेंज, सो पोटेंशियल विल चेंज, दैट पोटेंशियल विल बिकम V प्राइम। सो व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये निकालना है U एंड U प्राइम। फिर हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द प्लेट अपार्ट, तो जो चेंज इन एनर्जी आया वही हो गया वर्क। फिर पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विद द बैटरी, तो जो अभी हमने बताया था कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड, जो वर्क हमने किया और उस वर्क को टोटल एनर्जी में से माइनस कर देंगे, या इनिशियल एनर्जी जो था उतना ही एक्सचेंज हुआ, इनिशियल केस वाला एनर्जी।
फाइनल एनर्जी तो हमने जो एडिशनल वर्क किया उसके वजह से हुआ, तो इनिशियल बैटरी जो चार्ज उसको सप्लाई किया उसकी वजह से जो एनर्जी आया। जरा इसको आप ट्राई करोगे, फिर भी मैं सॉल्यूशन से आपको फेमिलियर करा देता हूँ। ये देखिए इनिशियल एनर्जी हाफ सीरीज पर सी की जगह पर एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स रख दिया हमने। जैसा कि आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। और फाइनल केस में जो है x 3x हो जाता है, तो x की जगह पर 3x डालते हैं तो ये 6 हो जाएगा। और तो इस केस में हम देखते हैं कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। और तो चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू दिस मच, तो इतना ही उस पर एडिशनल वर्क। फिर कहता है बैटरी कितना वर्क किया, तो बैटरी जो वर्क किया है टोटल वर्क डन में चेंज इन एनर्जी माइनस कर दें तो जो बचेगा वो दैट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। अब है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज। ये भी प्रॉब्लम ही है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज this much and potential difference between the plate is this much, where E is electric field, the energy stored can be written as, तो उस केस में एनर्जी स्टोर्ड UE, E stands for electric, so हाफ CV स्क्वायर, और C की जगह पर एप्सिलॉन नॉट A by D डाल देंगे, और V की जगह पर हम डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। So we will get here half epsilon naught A E square D square upon D. So D will be cancelled out. So you will get half epsilon naught E square into A into D. So A into D will be volume. Area into perpendicular distance will be volume. So volume into density equal to energy. So ये टर्म को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम को इधर ले आए तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। सो सिंस वॉल्यूम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इज AD, and so energy density is defined as U equal to half epsilon naught E square। स्मॉल u को हम एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कहेंगे, जबकि कैपिटल U E हो गया एनर्जी। ओके, अब है नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमें डिस्कस करना है कि कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। व्हेन यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इम्पैक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले ये समझना होगा कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। अ डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर and introduced between the two plates of capacitors and will increase the capacitance। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक्स को पैरेलल प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। अब तक हम वैक्यूम ले रहे थे, अब अदर देन वैक्यूम लेंगे। तो वैक्यूम था तो कैपेसिटेंस होता था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है, वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं, तो वहां पर हम इंसर्ट करना होगा एप्सिलॉन M, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और एप्सिलॉन M को हम उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन M की जगह पर हम K भी प्लेस कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि अब तक हमने सीखा कि पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है, जबकि अभी तक हम समझ रहे थे कि डिस्टेंस चेंज करने से अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस घटता है, और डिस्टेंस कम करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। दूसरा, एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता था, बिकॉज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to area of plate, inversely proportional to separation between the two plates। अब हम जानने जा रहे हैं कि कीपिंग एरिया एंड सेपरेशन फिक्स्ड, then is there any option or any method to increase capacitance? Yes, your answer will be yes।
by inserting a dielectric medium between the two plates with dielectric constant K. So dielectric medium is characterized by the dielectric constant K. It's its characteristics. More is the K, more will be dielectric property. So capacitance of parallel plate capacitor filled with dielectric get increased by K times. That means dielectric constant times or relative permittivity times. So using dielectric constant, we define permittivity because epsilon divided by epsilon naught is called relative permittivity. So epsilon divided by epsilon naught equal to K or equal to epsilon M. That you can say that relative permittivity of the medium with respect to vacuum. So you see here that epsilon A divided by D is the capacitance of a capacitor when no medium was present in between the plate. But as soon as a medium is presented there, inserted there between the plate, then its capacitance get increased by K times, where K is dielectric constant of the medium inserted between the plates. So look at dielectric strength is defined as the maximum electric field that a dielectric medium can experience without breaking down. This is called dielectric strength of the medium. If increase the electric field between the plate, one time, a time will come that molecular bond between the molecules of dielectric substance will broken, and in this case dielectric will behave as conducting material. So for vacuum dielectric constant is 1, for air it is 1.006, and for at 1 atmospheric pressure, and dielectric field strength is 3 into 10 to the power 6. यानी कि दिस मच वोल्ट पर मीटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं एयर में, तो यहाँ तक तो एयर आयनाइज नहीं होगा. अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा हम फील होते हैं तो एयर विल गेट आयनाइज, यानी एयर मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाएगा और आयन निकल. पैराफिन्स का वैल्यू होता है 2.2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाता है. देखिए 10 into 10 to the power 6 हो गया, यानी कि ये लगभग मोर देन 3 टाइम्स एयर से ज्यादा हो गया. फिर पॉलीस्ट्रीन इसका 2.6 है, तो इसका देखो 24, यानी 8 टाइम्स एयर का हो गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. और विनाइल प्लास्टिक है, इसका 2 to 4 होता है, इसका 50 टाइम्स हो गया. सॉरी, लगभग मोर देन 12 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एयर. पेपर लेते हैं 3.7 है, तो इसका 5 टाइम्स हो गया दैट ऑफ एयर. क्वार्ट्ज 4.3 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका हो गया लगभग मोर देन 2 टाइम्स ऑफ एयर. ऑयल का 4 है, तो लगभग 4 टाइम्स दैट ऑफ एयर. ग्लास पायरेक्स है 40, यानी लगभग मोर देन 4 टाइम्स. और पोर्सलेन जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 to 8 है, तो ये 5, यानी कि लगभग 1.5 टाइम्स मोर. माइका का 7 है, तो ये सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है माइका का है 150. It means 50 times that of the air. इसीलिए माइका का यूज हम इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं. आयरन के नीचे भी माइका रहता है और ऊपर भी माइका रहता है, बीच में आयरन का कॉइल होता है. अब देखिए वाटर लिक्विड, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, और इस तरह से स्ट्रोंटियम और टाइटेनेट 300 होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 8 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर होता है. तो ये सभी कुछ मीडियम्स था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखाया गया है, और साथ साथ उसका फील्ड स्ट्रेंथ भी दिखाया गया है. फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब किसी मटेरियल का
कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को वो बर्दाश्त कर सकता है एंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन इनटू आयंस। ओके, अब है द कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी ए, द वोल्टेज रिमेनिंग कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। पहले तो एक कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और अब उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया है वो कांस्टेंट रह जाएगा, बिकॉज ये जब फुल चार्ज हो गया तो द वोल्टेज रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज उस पर फिक्स हो गया तो वोल्टेज भी फिक्स रहेगा क्योंकि उसका कैपेसिटेंस फिक्स है। C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है तो V इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। तो फुल चार्ज अगर उस पर Q है और C कांस्टेंट है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट हो गया। अब सवाल है कि जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तब उसका C चेंज हो जाता है, और C जब चेंज होगा तो C कितना चेंज होता है, गेट इंक्रीज बाय कितना टाइम्स, बाय K टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल। तो ऐसी स्थिति में चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो क्या चीज चेंज होगा, Q इक्वल टू सी भी इक्वल टू K C नॉट V नॉट इक्वल टू K Q नॉट, क्योंकि ये कुल मिला के Q नॉट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज विल गेट इंक्रीज बाय Q नॉट टाइम्स, यानी इनिशियल चार्ज टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो है वो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज, एडिशनल चार्ज विल डेवलप देयर, और इसी वजह से यू सी हियर दैट चार्ज गेट इंक्रीज बाय K times, that is dielectric times. More is the dielectrics, more will be charge there. ये सिचुएशन है। इनिशियली किसी बैटरी से कनेक्ट किए जिसका वोल्टेज है V नॉट और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C नॉट है, ऐसी स्थिति में C नॉट इक्वल टू Q नॉट अपॉन V नॉट हो गया, क्योंकि इनिशियल चार्ज इतना ही है, इससे ज्यादा इस पर चार्ज आ भी नहीं सकता है इस वोल्टेज से। अब क्या किया गया है कि वोल्टेज को वही रखा गया, V नॉट बैटरी वही है, लेकिन उस कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया गया। ऐसा करने से क्या हो गया कि फर्स्ट प्लेट पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो हुआ प्लस K टाइम्स Q नॉट और दूसरे पर माइनस K टाइम्स Q नॉट, और इसलिए आपका ये नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखने का है कि ऐसा कैसे हुआ। अब है कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी, कैपेसिटर देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड द चार्ज रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर डिस्कनेक्ट करते हैं तो उस पर चार्ज, जो चार्जिंग होने के क्रम में जो भी चार्ज आया वो चार्ज तो उस पर रह जाएगा, तो चार्ज रिमेनिंग सेम कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो बैटरी से हटा लेने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तब क्या होता है, C इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, इनिशियल कैपेसिटेंस का K टाइम्स हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक्स। तो वोल्टेज कितना होगा, तो Q अपॉन C, दैट इज Q नॉट अपॉन K C नॉट, और इसलिए अब आपका इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, Q नॉट अपॉन C नॉट को हम V कह सकते हैं, इसलिए हम V नॉट अपॉन K हो गया। इसका मतलब जब हम किसी कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पर चार्ज आ गया Q नॉट, अब बैटरी को वहां से हटा देते हैं तो चार्ज Q नॉट ही रह गया कैपेसिटर पर। अब हम उस कैपेसिटर पर को जिस पर चार्ज Q नॉट है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसलिए उसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल गेट डिक्रीज बाय K टाइम्स।
will get decreased by 1 upon k times. पहले v नॉट था, अब हो गया v नॉट बाई k। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में क्या होगा, v बाई डी, ये हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो v की जगह पर v नॉट प्लेस करेंगे, d की जगह पर d तो रहेगा ही, लेकिन फर्क क्या होगा कि अब जो v हो गया हमारा v नॉट अपॉन k हो गया, तो ये वैल्यू प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाता है बाय k टाइम्स, दैट इज 1 अपॉन k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि व्हेन parallel plate capacitor is connected with a battery and then disconnected, and after that when you insert a dielectric medium in between the plates of the charged capacitor, then what happens to its voltage? Its voltage becomes 1 upon k times, that means get decreased. And what happens to electric field? Its electric field also decreased by 1 upon k times. So this is the result. Now come to the point. A parallel plate capacitor filled with a dielectric with dielectric constant 3.4 is connected to 100 volt battery. After the capacitor is fully charged, the battery is disconnected. जो अभी हमने डिस्कस किया, the plate have area this much, plate area है इतना, and are separated by this much. इससे क्या होगा कि हम उसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, एरिया और सेपरेशन और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल। अब क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटेंस, यानी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, हमारा आंसर सर इतना ही है कि D को आप मीटर में बदल लें। ओके, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दूसरा हमें चार्ज भी कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट बाई के हो जाएगा, यानी जो पहले था उसका 1 बाई के टाइम्स। फिर डाइलेक्ट्रिक इज केयरफुली रिमूव्ड, अब अगर डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करते हैं विदाउट चेंजिंग द प्लेट सेपरेशन एंड नॉट डज एनी चार्ज लीव द कैपेसिटर, और प्लेट सेपरेशन सेम रहेगा, चार्ज भी सेम रहेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को स्लैब को हम पुल कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, देन फाइंड द न्यू कॉज ऑफ कैपेसिटेंस, तब उसके कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये देखिए ये रिजल्ट है। कैपेसिटेंस हो गया जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को इंसर्ट कर दिया गया, तो हमें ये मिला के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, चार्ज आ गया इतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया v बाई डी, और एनर्जी आ गया इतना। अब कहता है कैपेसिटेंस इतना आ गया, चार्ज इतना आ गया, और वोल्टेज इतना आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ, और एनर्जी इतना हुआ। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव करेंगे, तब रिमूव करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंसर्ट करने से पहले चार्ज इतना था, कैपेसिटेंस ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन। आगे जब इंसर्ट कर दिया गया डाइलेक्ट्रिक को, तब क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1 अपॉन k टाइम्स इक्वल टू दिस मच, यानी ये जो वैल्यू है उसको बस केवल k से डिवाइड कर देना। ओके, अब है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है तो वो स्मॉलर देन दैट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स हो, तब क्या होगा कैपेसिटेंस पर असर। ये देखिए व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स, तो उसके वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी माइनस टी, ये वैक्यूम उसमें इतना ही अवेलेबल रहेगा d माइनस टी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है, तो ये वैक्यूम हो गया, ये इधर भी वैक्यूम हो गया, कितना वैक्यूम अवेलेबल है, तो d माइनस टी। तो पहले उसमें वैक्यूम में कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू d माइनस टी इक्वल टू पोटेंशियल इन द
vacuum plus electric field in the dielectric medium into thickness of dielectric medium. ये हो गया potential inside the dielectric slab. तो टोटल पोटेंशियल ये मिल गया. अब करना क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड डी को इसके टर्म में हमें निकाल लेना है. तो हम जानते हैं कि दिस बिकम्स इक्वल टू 1/k टाइम्स दैट ऑफ ई. जब ये वैल्यू हम वहाँ प्लेस करते हैं तो E/k इंटू टी हो गया. तो ई को कॉमन ले लिया हमने. ई को कॉमन ले लिया तो ई का वैल्यू है q बाय एप्सिलॉन नॉट ए और अंदर आ गया d माइनस टी प्लस टी बाई के. और जब रिजल्ट हमारा ये पोटेंशियल मिल गया और जब पोटेंशियल मिल गया चार्ज हमें दिया हुआ है ही तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. तो q डिवाइडेड बाय दिस मच तो हमें रिजल्ट मिलता है. तो ये इंडिकेट करता है कि अगर स्लैब का थिकनेस हम बढ़ाते चले जाए तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता चला जाएगा. ओके, अब आगे देखते हैं. यह है मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स को मॉलिक्यूलर स्केल पर अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वैक्यूम है यहाँ. तो फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है. The molecules in the dielectrics, when an external electric field inserted, tends to become oriented in a way that reduce the electric field. मतलब कि अगर इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन होगा वो इस तरह से खुद को ओरिएंट करेगा कि it will reduce the electric field in between the plates. So look at the situation here. Negative part of the molecule will attract it towards the positive plate and positive part of the molecule will attract it towards the negative plate. Therefore, as molecules are very closer to each other, therefore negative and positive in the bulk of dielectrics will be cancelled out, and only negative sign will remain here on this face and positive sign will remain here on this face. So equal and opposite charge will appear over the face of the dielectrics, causing an induced electric dipole moment, and due to this induction there will be polarization, and sometimes we say that induced charge will be there on the face of the dielectric. So here you see माइनस माइनस एंड हियर प्लस प्लस. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा था जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत कम होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गेट डिक्रीज्ड, और डिक्रीज हो जाने की वजह से क्यों डिक्रीज होता है तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में. तो ये एक दूसरे को कैंसिल करता है. दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक दूसरे को कैंसिल करता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेसर. तो मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज लेस than that would be in air or in vacuum, allowing more charge to be stored. चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो आराम से एडिशनल चार्ज विल बी स्टोर्ड मोर फॉर द सेम पोटेंशियल, क्योंकि ऐसा करने से डाइलेक्ट्रिक जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है. सो पोटेंशियल रिमेन्स सेम, सो मोर चार्ज कैन बी inserted or added because less electric field, so less repulsion will be there, so more charge will be added. So this orientation of molecule result in an induced charge over the opposite faces of the dielectric.